মহাকুম্ভে মহাসমারোহ, কোটি কোটি মানুষ পূর্ণ স্নান করছেন, সঙ্গমের জল অনেকে পানও করেছেন। এই আবহে দাবি করা হচ্ছে যে মহাকুম্ভে সঙ্গমের জলে নাকি ঘুরে বেড়াচ্ছে বিপজ্জনক সব ব্যাকটেরিয়া। মঙ্গলবার কেন্দ্রের দূষণ নিয়ন্ত্রক পর্ষদের তরফে এই রিপোর্ট পেশ করা হয়, যাকে কেন্দ্র করে রীতিমতো হইচই পড়ে গিয়েছে। তার মাঝে দাঁড়িয়েই এই দাবিকে উড়িয়ে দিয়েছেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তিনি বলছেন যে সঙ্গমের জল পান করার জন্যও যোগ্য। পাশাপাশি তিনি অভিযোগ করছেন যে কুম্ভের জলে স্নানে শরীরের ক্ষতি হতে পারে, বিরোধীরা এমন মিথ্যে প্রচার চালাচ্ছে। উত্তরপ্রদেশ বিধানসভায় বিরোধীদের প্রশ্নের উত্তরে বুধবার যোগী জানান যে এখনো পর্যন্ত প্রায় 56,25,00,000 মানুষ ত্রিবেণীর সঙ্গমের জলে ডুব দিয়েছেন। বহু সম্মানিত বিখ্যাত ব্যক্তিরাও মোক্ষ লাভের আশায় স্নান করেছেন। যোগী বলছেন যে আমরা যখন সনাতন ধর্ম, মা গঙ্গা কিংবা মহাকুম্ভের বিরুদ্ধে কোনো ভিত্তিহীন অভিযোগ করছি বা ভুয়ো ভিডিও দেখাচ্ছি, তখন আসলে 56 কোটি মানুষের বিশ্বাসে আঘাত করছি। তিনি আরও বলছেন, সমাজবাদী পার্টি কেন প্রশ্ন তুলছে যে মহাকুম্ভের পেছনে এত টাকা খরচ করা হবে। সপার বন্ধু লালু প্রসাদ যাদব বলছেন যে মহাকুম্ভ ফালতু। সপার আরেক বন্ধু সে বলছে যে মহাকুম্ভ নাকি মৃত্যু কুম্ভে পরিণত হয়েছে, অর্থাৎ তিনি এখানে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করছেন। যদিও সনাতন ধর্মকে উদযাপন করা অপরাধ হয়, তবে হ্যাঁ, অপরাধ করেছি, আমাদের সরকার তাহলে অপরাধ করেছে। তিনি আরও বলেন যে জলের গুণমান নিয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। সঙ্গম এবং তার আশেপাশের সমস্ত পাইপ এবং ড্রেনগুলিতে টেপ লাগানো হয়েছে এবং বিশুদ্ধকরণের পরেই জল ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। উত্তরপ্রদেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড জলের গুণমান বজায় রাখার জন্য ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ করছে। আজকের রিপোর্ট অনুসারে সঙ্গমের কাছে বিওডির পরিমাণ 3-এর কম এবং দ্রবীভূত অক্সিজেন তার পরিমাণ প্রায় 8 থেকে 9-এর কাছাকাছি। এর অর্থ হচ্ছে সঙ্গমের জল কেবল স্নানের জন্য নয়, এটি পান পর্যন্ত করতে পারবেন। মল কলিফর্ম বৃদ্ধির কারণে বিভিন্ন এই যে কারণগুলো দেখানো হয়েছে সেগুলো বিভিন্ন হতে পারে, তবে প্রয়াগরাজে মল কলিফর্মের পরিমাণ মান অনুসারে কিন্তু কমই আছে। অর্থাৎ যোগী আদিত্যনাথ তিনি কিন্তু বলছেন যে এই জল শুধু ডুব দেওয়ার জন্য বা স্নান করার জন্য নয়, আপনি পানও করতে পারবেন। কি বলছেন তিনি, শোনাবো আপনাদের। जल की गुणवत्ता के बारे में भी प्रश्न खड़े करने के प्रयास हुए। याद रखना 2013 में बायोरेमेडिएशन या जियो ट्यूब की व्यवस्था बहुत सीमित थी और परिणाम क्या था? पूरा कुंभ अव्यवस्था, गंदगी और अराजकता का एक अड्डा हो चुका था। उस स्थिति को सोचिए जब मॉरिशस के माननीय प्रधानमंत्री 2013 में प्रयागराज महाकुंभ में पधारे थे और गंगा में गंदगी देख करके, अव्यवस्था देख करके, पॉल्यूशन की मात्रा को देख करके उन्होंने स्नान करने से इनकार कर दिया। और 2025 में जब हम लोग आए हैं तो मैंने तो आपको आंकड़े बता दिए कि 56 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अभी स्नान कर चुके हैं, एक सप्ताह बाकी है। 81 नालों को यानी 261 MLD के जो वहां के नाले सभी को टेप किया गया है, और टेप ही नहीं किया गया है बल्कि उसके बारे में जो सरकार की व्यवस्थाएं बनाई गई है उसके बारे में मैं विस्तार से सदन में कहना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी उसके बारे में दुष्प्रचार करने की अपनी उस प्रवृत्ति से बाज नहीं आएंगे, और इसलिए मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा कि गंगा जी हो या यमुना जी हो, प्रयागराज के जितने भी वहां पे संगम स्थल से जुड़े हुए जितने भी वहां के अगल बगल के जितने भी नाले हैं, जितने भी इस प्रकार के सीवर का है, ड्रेनेज का है, सबको टेप करके या तो एसटीपी में या बायोरेमेडिएशन या जियो ट्यूब के माध्यम से उनके शुद्धिकरण के बाद ही उसे वहां पर वो किया जा रहा है। दूसरा है ट्रीटमेंट के बाद ही उस जल को छोड़ा जा रहा है। जल की शुद्धता के जो मानक होते हैं वह 2 स्तर पर जांची जाती है। एक तो बीओडी स्तर पर, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के रूप में, और दूसरा डीओ के रूप में, डिजॉल्व ऑक्सीजन के रूप में।
और इन दोनों के मानक निर्धारित हैं, इन दोनों के मानक निर्धारित हैं, जिसमें बीओडी 3 या उससे कम होना चाहिए और डीओ जो डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा है वो 5 से अधिक होनी चाहिए। जल में स्नान करने के लिए जल की जो मात्रा होती है उसमें ये मात्रा इस रूप में होनी चाहिए। और मुझे बताते हुए यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो लगातार वहां पे जल की मॉनिटरिंग करता है, उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए कार्य कर रहा है। और आज की जो उनकी रिपोर्ट है संगम की, कि संगम और उसके आगे पीछे जो बीओडी है वो 3 या उससे कम है और डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा ये 8 और 9 से अधिक पाई जा रही है। यानी संगम का जल स्नान करने लायक भी है और आचमन करने लायक भी है। जो लोग इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं उन सबको इस बात को देखना चाहिए। एक समाचार पत्रों में एक न्यूज जो देखने को मिली, मैं भी देख रहा था, पुरानी न्यूज है, एनजीटी के माध्यम से, एनजीटी का नाम लेकर के दिया गया है, किसी ने दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि फीकल कोलिफॉर्म की उसमें उन्होंने चर्चा की। ये फीकल कोलिफॉर्म की जो मात्रा उन्होंने की है इसमें 2500 एमपीएम यानी मोस्ट प्रोबेबल नंबर, ये उससे उसका मापक माना गया है। इससे कम होनी चाहिए 100 ml में, 100 मिलीलीटर में। और इसके जो अलग अलग नमूने लिए गए फीकल कोलिफॉर्म के लिए, ये फीकल कोलिफॉर्म बढ़ने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। या तो कहीं सीवेज लीकेज है, या बहुत बार होता है कि वे इस प्रकार की नदियां हैं कोई वह चैनलाइज तो है नहीं, भैंस है, गाय है या अन्य जानवर उसमें आते हैं, नहाते हैं, उसके कारण भी, उनके गोबर आदि के कारण भी इसकी मात्रा तेजी के साथ बढ़ती है। लेकिन प्रयागराज के संदर्भ में जो मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि 12, 16, 20, 25, 30 जनवरी, 5, 10 और 13 फरवरी को जो सैंपल के परीक्षण लिए गए हैं उसमें संगम नोच पर फीकल कोलिफॉर्म की मात्रा मानक के अनुरूप पाई गई है। ये उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का है, जो 2500 एमपीएम प्रति 100 ml से कम पाई गई है। इसका मतलब जो दुष्प्रचार कर रहे हैं केवल कुंभ महाकुंभ को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है। और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में भी जिनके नाम पर खबर है এই ভিডিও সম্পর্কে আপনাদের মতামত জানাবেন, কমেন্ট সেকশন খোলা রয়েছে আপনাদের জন্য। সমস্ত খবরের আপডেটের জন্য সাবস্ক্রাইব করবেন আজ তাক বাংলার ইউটিউব চ্যানেলকে, ফলো করতে ভুলবেন না আজ তাক বাংলার হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলও।